Today we are going to study the chapter reproductive health. So we are going to start. So I have learned about the human reproductive system and its different chapters. We discuss the closely related topic reproductive health. What do we understand by this term? The term simply refers to the healthy reproductive organs with normal function. So इसका मतलब ये है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने होने चाहिए, वो हेल्दी होने चाहिए. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects. But खाली like organs healthy हुए से हम healthy नहीं हो जाते. Like उसका काफ़ी broader perspective है. जैसे कि उतना ही जितना like हमारे organs का normal function होना चाहिए, उतना ही emotional and social aspect यहाँ पे भी role play करता है reproduction में. According to the WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects. तो total well-being देखा जाता है इधर physical, emotional, behavioral and social सारे. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspects might be called as reproductively healthy. तो जो सारे लाइक फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल एस्पेक्ट्स में जो लाइक हेल्दी होंगे उनको ऐसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे. विच इज सिग्निफिकेंट टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टेकन टू अचीव इट. तो आगे में पढ़ेंगे. Reproductive health problems and strategies. India was among the first countries in the world to initiate action plans and programs. So इंडिया जो है वो पहले कंट्रीज में होता जो जिन्होंने ऐसे इनिशिएट किया था एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स किस लेवल पे, नेशनल लेवल पे, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ. जिससे कि वही जो हमने डिस्कस किया था फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. These programs are called family planning, were initiated in 1951. तो इन प्रोग्राम्स को क्या बोला गया था? फैमिली प्लानिंग बोला गया. अभी कब इनिशिएट हुए थे? 1951. दिस इज इम्पॉर्टेंट. 1951 में फैमिली प्लानिंग हुई थी and were periodically assessed over the past decade. Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation. Improved program covering wider reproduction related areas are currently in operation under the Poverty Reproductive and Child Health Care Programs. तो ऐसे रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं RCH प्रोग्राम्स के अंदर, जिसका फुल फॉर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़. और लोग क्या बताए ना कि लाइक रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में अवेयरनेस फैलाना एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. और उनको लाइक काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना ताकि वो हेल्दी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड कर सकें. ये जो था ये मेजर टास्क थे. वो किसके अंदर? ये RCH के अंदर यही मेजर टास्क थे कि वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और सपोर्ट प्रोवाइड करे ताकि वो हेल्दी सोसाइटी बिल्ड कर पाए. With the help of audio, visual and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about the reproduction related aspect. तो आप लोगों ने देखा होगा लाइक ऐसे काफ़ी से ऐसे दीवार पे ऐसे बने रहते हैं जहाँ पे ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं जैसे कि हम लोग माइंडो एंड ऑल दिस. तो यहाँ पे लिखा है कि प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, चाहे वो गवर्नमेंटल एजेंसीज हो चाहे नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हो, ठीक है, they have taken the various steps in creating awareness. तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच में about reproduction related aspect. लिए पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव टीचर्स ये सब क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं about above information which we call reproduction related aspects.
Introduction of sex education in schools should be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from behaving in the myths and having misconception about sex-related aspects. तो लाइक स्कूल में भी अच्छी ऐसे सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए ताकि हम मिस इन्फॉर्मेशन पे बिलीव ना करें और मिथ्स पे बिलीव ना करें हम और सही चीज़ें प्रैक्टिस करें. Proper information about the reproductive organs, adolescence, and related changes, safe and hygienic sexual practices. Proper information किसके बारे में? reproductive organs के बारे में, adolescence के बारे में, and related changes. Safe and hygienic sexual practices. वो का मतलब जो हमारे sexual practices है वो काफ़ी hygienic होनी चाहिए. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी एंड एड्स जो फैलता है तो मतलब उसकी वजह से हमें हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए. वुड हेल्प द पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलसेंस एज ग्रुप जैसे कि टीनेजर्स होते हैं तो वो लोगों को हेल्प कैन लीड टू रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ. तो जब हम बच्चों को एजुकेट करेंगे तभी तो हमारी जनरेशन काफ़ी ऐसे एजुकेट होगी. एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप. तो इन सब के बारे में उनको भी हमें लाइक एजुकेट करना चाहिए लाइक द फर्टाइल couples which are in the marriageable age group about available birth control options, care of pregnant mother, postnatal care of the mother and the child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the female and male child, etc. So मतलब ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा जैसे कि प्रेग्नेंट मदर को कैसे केयर करना होगा, पोस्ट नेटल केयर जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद कैसे केयर करना होगा. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड. ठीक है, तो मतलब दोनों ही जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. वुड एड्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिज़ायर्ड चाइल्ड, डिज़ायर्ड साइज. तो ये क्या करेंगे इम्पोर्टेंस तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से क्या हमको बचेगा, इम्पोर्टेंस पता चलेगा. ब्रिंग अप द सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिज़ायर साइड. तो जिस मतलब जब उनको सेफ चीज़ें प्रैक्टिस कराएंगे और काफ़ी बार कंट्रोल ऑप्शन के बारे में बताएंगे तो अपने डिज़ायर साइड की फैमिली वो सेटअप कर पाएंगे. अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उनसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है जैसे कि कंपटीशन बढ़ रहा है और सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स. तो अभी काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स बढ़ गए हैं तो उन सब चीज़ों के रिलेटेड में भी हमको एजुकेट करना होगा. नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby building a socially responsible and healthy society. Successful implementation of various action plan to attain reproductive health requires strong infrastructure, facilities, professional expertise, and material support. These are essential to provide the medical assistance and care to the people in reproduction-related problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, contraception, menstrual problems, infertility, etc. तो ये सारे जो बहुत सारे एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं तो जब हम इनको अटेन कर लेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स तो और जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या चाहता है लाइक वो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जो है ताकि हम बहुत सारी चीज़ों से डील कर पाए. मतलब कि जैसे कि मेडिकल अच्छा मेडिकल केयर मिले. ठीक है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक ये सब में जो लिखा है उन सब में हेल्प मिले. ठीक है, implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on the amniocentesis for sex determination clearly check increasing menace of the female fetus. इसमें क्या होता है कि
पहले फीमेल को मार दिया जाता था। लाइक ये इसका ये अम्नियोटिक फ्लूइड होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसको डॉक्टर क्या करते हैं, उसको लेके चेक करते हैं, तो उससे स्ट्रक्चर रिमाइंड हो जाता है। तो ये जो अमीनो सिंथेसिस था, तो इसको अब क्या कर दिया गया, बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे क्या हो रहा था कि फीमेल फीटिसाइड के केसेस बढ़ रहे थे। मतलब चाइल्ड इम्यूनाइजेशन और बहुत सारे ऐसे हम लोग वैक्सीन लगाते हैं ना बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो वो सारे चाइल्ड इम्यूनाइजेशन मतलब बढ़ते गए। और सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन द कनेक्शन, ठीक है। इन देखो यहाँ पे होता क्या था, इन अमीनो सिंथेसिस सम ऑफ द amniotic fluid, ठीक है, ऑफ द डेवलपिंग fetus is taken to analyze the fetal cell and the dissolved substances। तो वही उनका फ्लूइड लिया जाता था और उसमें फीटल सेल का एनालिसिस किया जाता है, और उसमें जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते थे उनका। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज, बट वो किस लिए बना हुआ था कि हम पता कर सके कि कौन कौन से जेनेटिक ऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एंड डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। कि मतलब अगर ये सारे किसी भी फीटस में ये सारी बीमारियां हैं, तो उसकी सर्वाइवल रेट तो कम होगा, तो वो आखिर में बस सफर ही तो करेगा। तो इसलिए पहले से पता लगा लेते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो मतलब फिर वो कपल्स अपने हिसाब से देखेंगे कि लाना है या नहीं लाना है। Research on various reproduction-related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new method and or improve upon existing one, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें जो गवर्नमेंटल एजेंसीज भी सपोर्ट करती है, बट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज दोनों मिलकर सपोर्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि ये सही, ठीक है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर फीमेल्स, दिस इज फॉर फीमेल्स, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। सही, a new oral contraceptive for females was developed by CDRI, by Central Drug Research Institute, CDRI, वहाँ पे लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है। Better awareness about sex-related matters, increasing number of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ज़्यादा अवेयरनेस हुई, ठीक है, सेक्स-रिलेटेड मैटर्स में, तो इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, तो ठीक है, अब मैं अच्छे से मतलब केयर के साथ, ध्यान के साथ वो सारी डिलीवरीज होंगी। और प्लस पोस्ट नेटल केयर, तो आफ्टर डिलीवरी जो ऐसे केयर 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 किया जाता है मदर का और इन्फेंट का, तो वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। डिक्रीज और उससे क्या होगी, डेथ रेट जो है बच्चे की और माँ की दोनों की कम हो जाएगी। डिक्रीज paternal infant mortality rate, increase number of couples, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिलीज, मतलब ऐसे प्रमोट किया जा रहा है कि एक छोटी फैमिली रखो, हम तो हमारे दो वाले स्लोगन्स चल रहे हैं। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, और उससे क्या हो रहा है कि डिटेक्शन भी मतलब और लाइक डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs हो रहा है। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज, एक्सपेक्ट ऑफ इंडिकेटर इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सोसाइटी। तो ये मतलब मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, और ये पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट में ज़्यादा इम्पैक्ट रेट होगा, तो उसमें डिक्रीज देखते हैं। Population stabilization, birth control, ठीक है। In the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people. However, increased health facilities along with better living conditions and our explosive impact on the growth of the population। तो यहाँ पे हम लोग ग्रोथ की बात करेंगे कि कैसे कैसे ग्रोथ, मतलब कैसे ग्रोथ बढ़ी थी, है ना, मतलब कैसे जैसे साल बढ़ते गए, कैसे कैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ते गए। और पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन 2000, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद करना है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 रॉकेट अबाउट 6 बिलियन। तो देखो
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वर्ल्ड की, वर्ल्ड पॉपुलेशन की, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, विच वॉज अराउंड 2 बिलियन। तो वो कितनी थी? 2 बिलियन थी। कौन से ईयर में थी? 1900, ठीक है। अब वही हम लोग बात करें, फिर अगर 2000 की बात करें, 19,000 बाद, सॉरी 1900 के बाद 2000 हो गया, ठीक है। तो तब कितनी बड़ी? 6 बिलियन हो गई, ठीक है। एंड फिर क्या हुई? 7.2 बिलियन 2011 तक। वही हम लोग अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। प्लीज आवर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000, ठीक है। जो कि 2000 में कितना होगा? 1 बिलियन हो गया, एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011। और अगर हम लोग 2011 की बात करें तो 1.2 बिलियन हो गया, ठीक है। Rapid decline in the death rate, maternal mortality rate, infant mortality rate, as well as the increase in the number of people in reproducible age are probable reason of this, ठीक है। तो वही जो हमने डिस्कस किया कि infant mortality rate घट गया है इनसे, और ये maternal mortality rate भी घट गया है, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उस एज में, उस एज के लोग बढ़ चुके हैं। रीजंस फॉर दिस, ठीक है। दो द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जो कि हमने बात किया था RCH के बारे में, दो भी could bring down the population growth rate, it was only marginal according to 2011 सेंसस रिपोर्ट। ये याद करना, 2011 सेंसस रिपोर्ट में क्या बता था? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो लेस देन कितना था? लेस देन 2% था, ठीक है। विच यू कैन राइट एज 25,000 पर ईयर, ठीक है। द रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, ठीक है। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic liquor। तो इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा, इतना ज़्यादा लोग होंगे, तो ऑब्वियसली चीज़ों के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, है ना, रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि हमने कॉलेज में पढ़ा। तो इसमें वही लिखा है कि जैसे कि बेसिक चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ठीक है। में एरिया देयरफॉर द गवर्नमेंट को फोर्स टू टेक अप सीरीज में, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा उसके लिए? बहुत ऐसे, इसलिए यही सारे प्लान्स, एक्शन प्लान्स लाए गए, और फैमिलीज, मतलब छोटी फैमिलीज को प्रमोट किया गया, क्योंकि यही सारे रीजंस थे, गवर्नमेंट इस केस को प्रमोट करती है। The most important step to overcome this population is to motivate smaller families, ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम। इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्या था? कि छोटा फैमिली प्रमोट करो, ठीक है, बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत सारे, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, चलकर क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने के लिए, ठीक है। यू हैव सीन advertisement in the media as well as the posters or bills showing a happy couple with the 2 children with stone hum do hamare do, that we talked about. We too, our too, many couples, mostly the young urban working one, have even have adopted and one child now। तो आजकल लाइक सिटीज में और जो काफी एरिया के लोग हैं, उनको पता है कि एक, जो हमने बात करी ना कि ऐसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और बेसिक चीज़ें की रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है, तो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। सो द पीपल इन द सिटीज लाइक इन अर्बन एरियाज, दे आर अडॉप्टिंग वन चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। जैसे कि जिसका स्लोगन ये हो सकता है, ये है हम लोग हमारे घर स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर। तो फीमेल जो है उसकी मैरिजेबल एज 18 हो गई, और जो मेल है उसका 21 कर दिया गया, ठीक है। एंड incentive given to the couple with a small family are the two of the other measures taken to tackle this problem। Let us describe the commonly used contraceptive, हम डिस्क्राइब कर कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकता है, ठीक है।
एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। क्या क्या होना चाहिए इसमें? क्वालिटीज, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए ऑब्वियसली, रिवर्सिबल होना चाहिए, विद नो और लेस साइड इफेक्ट। ऑब्वियसली कौन चाहेगा साइड इफेक्ट? तो it also should in number no way sorry it also should in no way interfere the sexual drive or desire and or the sexual act of the user. ठीक है? A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories. कौन कौन से हैं वो? नेमली नेचुरल और ट्रेडिशनल, ये हो गया एक हो गया बैरियर, एक हो गया आईयूडी हो जाएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाएगा, इंजेक्टेबल इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड, ये सारे हैं इम्पोर्टेंट। इसके बाद नेचुरल मेथड। ठीक है? Natural methods work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting। थी नेचुरल मेथड में क्या होता है कि हम लोग लाइक मतलब मोस्ट नेचुरल पॉसिबल वे रखते हैं कि क्या हो सके कि ये ओवम और स्पर्म का मीटिंग का चांसेस अवॉइड किया जा सके, मतलब कम, बहुत कम ही किया जा सके। ठीक है? तो पहला होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। Periodic abstinence, ठीक है, is one such method in which couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 on the menstrual cycle, जब फीमेल की menstrual cycle स्टार्ट होती है। ठीक है? तो मान लो एक लोग, ठीक है, तो इसमें जो 10th डे आएगा, ठीक है, 10th डे से लेकर ये जो 17th डे था, मतलब कि 7 डेज का पूरा है ना। तो डे फ्रॉम 10 टू 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे क्या किया जाता है कि चांस ऑफ फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है? तो फर्टाइल पीरियड होता है ये ड्यूरिंग, देयरफॉर एब्स्टेनिंग फ्रॉम द कॉइटस इन दिस पीरियड कंसेप्शन शुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है? तो इस टाइम पे कॉइटस अवॉइड किया जाता है। ठीक है? क्योंकि हाईली फर्टाइल पीरियड है, 10th डे है ये 10 डेज नहीं है, ये है 10th डे टू 17th डे। देखो therefore हाँ ठीक हो गया। Withdrawal or coitus interruptus is another method in which a male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. So just before the male partner is going to inseminate, he withdraws his penis from the vagina. Lactational amenorrhea, absence of menstruation। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि ओवुलेशन method is based on the fact of ovulation and therefore the cycle do not occur during this period of the intense lactation following parturition। जो पार्शियल पार्चुरेशन होता है जब डिलीवरी होती है बेबी, उसके 6 महीने तक ये लैक्टेशन अमीनोरिया होता है। ठीक है? 6 मंथ्स तक। तो इसमें क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है? यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, जब साइकिल नहीं चल रही होती। ठीक है? fact that ovulation therefore the cycle does not occur during this period। हाँ ठीक है, intense lactation होता है उस टाइम पे for following parturition। therefore as long as the mother breastfeed the child fully, तो वो fully child को breastfeed करा रही है, the chances of conception are almost nil। तो तब अगर दोनों पार्टनर absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle। ठीक है, method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months। ठीक है? जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है तब तक कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम ही होंगे। ठीक है? तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग द पार्टनरशिप मेडिकेशन डिवाइस, यहाँ पे कोई देखो मेडिसिन या फिर डिवाइस नहीं यूज हो रहा है, नेचुरल मेथड से लैक्टेशन है ना, कॉइटस इंटरप्टस और ये तीनों है नेचुरल मेथड के एग्जाम्पल। ठीक है? ये तीनों तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये सारे नेचुरल मेथड। चांस ऑफ फेलियर दो इसमें आ जाए, और उसकी कुछ ऐसा
नेचुरल मेथड से, ठीक है, तो कुछ हम लोग अपने साइड से वैसा यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। सेकेंड आ जाता है बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड में ओवरनाइट स्पॉन्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद हेल्प ऑफ बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैरियर्स यूज़ करेंगे जहाँ पे जिससे कि क्या होगा, ओवन और स्पॉन दोनों उनकी मीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों के अवेलेबल है। सी कॉन्डम्स आर द बैरियर मेड ऑफ थिन रबर के बने होते हैं, लेटिक शीट that are used to cover the penis in the male and vagina and the cervix in the female, ठीक है, just before the coitus so that the ejaculated semen would not enter the female reproductive tract, ठीक है। This can prevent conception. निरोध is popular brand of condom for the male। तो ये याद रखना है, निरोध किसके लिए है, इस दो मतलब दो ऑप्शन आ सकते हैं कि निरोध किसके लिए, फीमेल के लिए, मेल के लिए। तो निरोध जो है वो मेल के लिए है। Use of condom has increased recently due to the associated benefit protecting the use from the contracting STIs and AIDS। तो ये क्या करता है, STI और AIDS से बचाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ गया। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है, और यूज़र फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, प्राइवेसी देते हैं उनको, प्राइवेसी टू द यूज़र, सेल्फ इंसर्टेड और किसी की हेल्प भी नहीं चाहिए होती है। देखो डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड बॉल्स, ठीक है। अगला अगला बात करते हैं, मैंने बैरियर वाला पढ़ लिया, इसमें कॉन्डम सर जाता है। इसका फिर आता है डायफ्राम, सर्विकल, हाँ ये देखो इमेज है इधर, फीमेल के लिए, ये फीमेल के लिए। Diaphragm, cervical caps, and walls are also barriers made up of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ये बैरियर्स होते हैं, ठीक है, किसके बने होते हैं, रबर के, और देन इंसर्ट ऑब्वियसली ये सारे फीमेल के अंदर इंसर्ट हो गए, ठीक है। कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है, टू कवर द सर्विक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से घुमा सकता है कि कहाँ पे, वजाइना में, सर्विक्स में, कहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विक्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग क्वार्टर्स दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म टू द सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स यहाँ पे भी देखो, दे आर रीयूजेबल होते हैं, ऑब्वियसली ये रीयूजेबल है, ठीक है सारे। spermicidal jellies and foams are used along with these barriers to increase the contraceptive efficiency। तो इसके साथ क्या क्या है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स यूज होता है, जेलीज यूज होता है और फोम्स यूज होता है, क्यों, ताकि हम लोग इसका ये जो है ना उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सके। अब हम बात करेंगे अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड की, जो कि है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, जिनको हम आईयूडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आईयूडीज कौन कौन से, दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये डॉक्टर्स के से ऑब्वियसली डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो मामूली चीज़ नहीं है, तो डी डॉक्टर्स के हेल्प से ऐसे इंसर्ट होंगे, और एक्सपर्ट नर्स है जो कि बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है। और इन द यूटरस थ्रू द वजाइना, ठीक, कहाँ पे प्लेस्ड होंगे ये सारे, यूटरस में, ठीक है, कहाँ से, थ्रू द वजाइना। These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs, ठीक है। तो ये जो IUDs हैं, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड IUDs। तो देखो IUD, नॉन मेडिकेटेड IUD का एग्जाम्पल याद करो, लर्न कर लो, नॉन मेडिकेटेड IUD, इसका हो जाएगा लिपीज लूप, ठीक है, लिपीज लूप। कॉपर रिलीजिंग IUD, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, कॉपर रिलीजिंग में, ये कभी कभी ऑप्शन में आ देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको देखें। कॉपर रिलीजिंग IUDs में आ जाएंगे कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड। कभी कभी मल्टी लोड का ऑप्शन इधर उधर कर देते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मल्टी लोड 375 ये कॉपर के हैं। बाकी फिर एक आता है हार्मोन रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग IUD, इसमें कौन क्या आ जाते हैं, हार्मोन्स। तो इसका लर्न करने का ये ट्रिक है कि हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है, यहाँ पे क्या है, प्रोजेस्टेरोन, तो हार्मोन में एग्जांपल आ जाएगा प्रोजेस्टेरॉन,
सर्ट एन LNG-20, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये आईयूडीज क्या करते हैं, इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना आईयूडीज यूटेरस के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये यूटेरस के अंदर क्या करेंगे, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, विद इन द यूटेरस एंड CUIN रिलीज सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। याद रखना CUIN हमेशा से क्या रोल प्ले करता है, ये सप्रेस करता है, सप्रेस मोटिलिटी, मोटिलिटी सप्रेस करता है, मतलब उनका स्पर्म्स का मूवमेंट जो है वो कम कर देता है। ठीक है, जितनी स्पीड से वो जा रहे थे, और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम कर देता है। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन मेक्स द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो और जो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं, ये क्या करते हैं, जो यूटेरस में प्लेस होता है ना, ये क्या करेंगे कि अनसुटेबल बना देंगे यूटेरस को, किसकी चीज़ के लिए, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। एंड सर्विक्स जो होगा, सर्विक्स ही तो आएगा ना, तो सर्विक्स को क्या बना देंगे, हॉस्टाइल बना देंगे स्पर्म के लिए। आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो आईयूडीज क्या होते हैं, काफ़ी ये वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं फॉर फीमेल्स, और फीमेल्स में लगेंगे हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इंडिया में सबसे ज़्यादा, वो पूछ लेगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड यूज होता है, इसका आंसर होगा आईयूडी। ठीक है, oral administration of a small dose of either progesterone or progesterone estrogen combination is another contraceptive method used by female। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ओरल वाले में, क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे ओरल में, ओरल में आ जाएगा या तो खाली हम प्रोजेस्टेरॉन्स ले। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन्स लें, या फिर लेंगे हम लोग प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स। तो इनको क्या बोलेंगे, हम लोग पिल्स बोलेंगे। ठीक है, pills have to be taken daily for 21 days starting within the first 5 days of menstrual cycle। ठीक है, और इनको कैसे लेना पड़ता है, इनको पिल्स को लेना पड़ता है 21 डेज के लिए। ठीक है, 21 डेज के लिए लेना पड़ता है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और कब से स्टार्ट करना पड़ता है, फर्स्ट 5 डेज स्टार्ट करना पड़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होने से। ठीक है, स्टार्ट होने से first 5 days of menstrual cycle after a gap of 7 days during which menstruation occur। ठीक है, it has to be repeated in same pattern, but जो गैप आएगा 7 days का, तो जब menstruation हुआ, bleeding हुई थी, it has to be repeated in the same pattern। उसके बाद से वो ये फिर से वही पैटर्न रिपीट किया जाएगा, ये 21 days वाला। then the female desire to prevent conception, जब तक उसको नहीं चाहिए होगा। ठीक है, conception they इनिबिट ओवल्यूशन, ओवल्यूशन नहीं करने देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इम्प्लांटेशन भी नहीं करने देते, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ओवल्यूशन और इम्प्लांटेशन नहीं करने देते। एज वेल एज द alters the quality of cervical mucus to prevent और retard the entry of sperm। और ये क्या करते हैं, सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी चेंज कर देते हैं, तो इससे उनकी मोटिलिटी भी अफेक्ट होती है। ठीक है, retard the entry of sperm, pills are very effective and lesser side effect and are well accepted by the females। तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, लेस साइड इफेक्ट भी होता है, वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल। और क्या चाहिए फिर, तो सहेली, सही, ये इसका एग्जाम्पल हमने याद किया था ना, सहेली याद करना है। द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सहेली में कैसा होता है, नॉन स्टेरॉइडल होता है। ठीक है, सहेली नॉन स्टेरॉइडल, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। ठीक है, कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। ठीक है, अब इट इज वंस अ वीक
pill with a very few side effect and high contraceptive value। ठीक है, तो इसको कैसे लेंगे हम लोग? ठीक है, ये वंस अ वीक, मतलब एक वीक में एक ही बार खाया जाएगा ये। ठीक है, वंस अ वीक पिल विद अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट बहुत कम होता है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होता है। ठीक है, काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है और नॉन स्टेरॉइडल होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट याद करना। तो प्रोजेस्टेरॉन alone in this combination with estrogen can also be used by female। ठीक है, जैसे कि हमने बात किया था प्रोजेस्टेरॉन along with combination with estrogen। ठीक है, यहाँ प्रोजेस्टेरॉन की तो हमने बात कर ली, बट यहाँ पे क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो हमने कॉम्बिनेशन का बोला था, इसमें क्या क्या आ जाएगा? कॉम्बिनेशन एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स। ठीक है, एज इंजेक्शन, इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन हम एज यूज करेंगे इंजेक्शन के फॉर्म में, इम्प्लांट्स के फॉर्म में, स्किन के अंदर। ठीक है, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल। इनका भी एक्शन सिमिलर टू पिल होता है, बट देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। तो इम्प्लांट्स हैं तो इनकी इफेक्टिव पीरियड काफ़ी लॉन्गर होते हैं, बट पिल्स के थोड़े शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है, इमरजेंसी और देखो, administration of progesterone or progesterone combination of IUD within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency। ठीक है, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन लिए थे, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन लिए जाते हैं या फिर आईयूडीज है। ठीक है, ये कब मतलब बहुत ज़्यादा से कब अच्छा काम करेंगे? जब इनको 72 आवर्स के अंदर ले लिया जाएगा। ठीक है, कोइटस के, और इनको यूज़ किया जा सकता है एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड द पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, सेक्सुअल सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, are generally advised for male or female partners as a terminal method to prevent any more pregnancies। ठीक हो, तो इसको याद कर लेना कि ये टर्मिनल मेथड है। ठीक है, परमानेंटली ये मतलब ऑलमोस्ट इसका इफेक्ट इरिवर्सिबली होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट बिकॉज में स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें वेसेक्टॉमी होता है, टिबेक्टॉमी होता है। वेसेक्टॉमी में यहाँ पे वास्ट, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है कि इसमें वास्ट डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसमें वेसेक्टॉमी होगा और इसमें फीमेल्स में टिबेक्टॉमी होगा। ठीक है, वास्ट डिफरेंस को यहाँ से कट कर दिया जाता है और टाइट कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को ऐसे कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, इसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक gamete transport and thereby prevent conception। Surgical intervention block gamete transport and thereby, तो ये जो सर्जरी हुई है जिससे क्या होगा, जो गैमीट होगा ना वो ब्लॉक हो जाएगा, एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्ट होता है, इससे कंसेप्शन नहीं हुआ। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड, हाँ देखो, वेसेक्टॉमी बोलते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड। या तो वास्ट डिफरेंस रिमूव करते हैं या तो टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, टाइट अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ओवर द स्क्रोटम। ठीक है, या तो स्क्रोटम के ऊपर यहाँ पे ऐसे टाई कर दिया तो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, स्मॉल पार्ट स्क्रोटम। ठीक है, वेयर इज इन ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, जो फीमेल के अंदर होता है उसमें क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप through a small incision of the abdomen or through vagina। ठीक है, these techniques are highly effective but their reversibility is poor। ठीक है, ये इफेक्टिव तो बहुत होते हैं क्योंकि जब कट करके टाई कर देंगे तो स्पर्म तो ना मेल में स्पर्म जाएगा ना फीमेल में ओवम पास हो पाएगा उधर से। ठीक, बट इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। ठीक है, इट नीड टू be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with a qualified medical professional। ठीक है, इसका यूज़ मतलब हमें मेडिकल से जो काफ़ी प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे कंसल्ट करके लेना चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर द कॉन्ट्रासेप्टिव और नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, in fact, they are a practice against a natural reproductive event, conception or pregnancy. One is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to a personal reason।
No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, there are possible ill effects like nausea. तो मतलब जैसे क्या क्या हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स इनके क्या क्या हो सकते हैं ये जो हम मेथड्स यूज कर सकते हैं इनसे नाusea हो सकता है एब्डोमिनल पेन हो सकता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी हो सकती है हैबिलिटी का इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर ठीक है अब एमटीपी की बात करेंगे अमेंडमेंट ये 2017 में आया था इंपॉर्टेंट है याद कर लो वॉज इंटैक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शंस जो हो रहे हैं इंडिया में तो उसके लिए ये वाला रूल बनाया गया था एंड consequent maternal mortality rate and morbidity ठीक है और according to this act a pregnancy must be terminated on certain considered group within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of the one registered medical practitioner ठीक है तो अगर फर्स्ट 12 वीक्स में जो है हमको टर्मिनेट कराना है तो फिर हम लोग एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का एडवाइस लेंगे इफ़ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन 12 वीक्स 12 वीक्स से ज़्यादा बट फ्यूवर देन 24 वीक 12 वीक से ज़्यादा बट 24 वीक से कम टू रजिस्टर टू प्रैक्टिशनर का एडवाइस लेंगे मस्ट बी ऑफ देयर द ओपिनियन फॉर्म इन द गुड फेथ एंड द रजिस्टर एग्जिस्ट टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है The continuation of pregnancy would involve a risk of the life of pregnant women or grave injury, physical or mental health. ठीक है मतलब कुछ कुछ में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है ठीक है कभी कभी बेबी को रिस्क होता है कभी कभी मदर को रिस्क होता है तो उसको उस प्रेगनेंसी मतलब से कंटिन्यू नहीं कर सकते ठीक है तो उसको कभी कभी टर्मिनेट करना पड़ जाएगा उस सब चीज़ों के लिए देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड वाज बोर्न इट वुड सफर ठीक है तो चाइल्ड अगर बोर्न हो जाएगा तो वो सफर करेगा ठीक है जैसे फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज से एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप कभी हैंडीकैप भी हो जाएगा ठीक है तो इसलिए बात करेंगे एमटीपी की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी ठीक है मतलब डिलीवरी से पहले टर्मिनेशन कराना ठीक है वही एमटीपी होता है इंड्यूस अबॉर्शन ठीक है नियरली 45-50 million एमटीपीज आर परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच ठीक है तो 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होते हैं एक साल में ठीक है पूरे वर्ल्ड में विच अकाउंट्स बी 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी ठीक है जो टोटल प्रेगनेंसी कंसीव होते हैं उनका वो क्या होता है 1/5 पार्ट होता है ठीक है जो कि टर्मिनेट हो जाता है एक साल के अंदर वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी इज नॉट is MTP or not is being a debate upon many countries due to emotional, ethical, religious and social issue involved in it ठीक है तो बहुत सारी कंट्रीज में ये डिबेट है कि एमटीपी को लीगल करें या नहीं करें ठीक है क्यों क्योंकि इमोशनल रीजंस हैं एथिकल रीजन रिलीजियस और सोशल इश्यूज हैं ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी बट इंडिया में क्या किया गया लीगलाइज किया गया है एमटीपी किस कब 1971 इंपॉर्टेंट है एंड सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड मिसयूज ठीक है बहुत सारे कुछ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए गए हैं जिससे इसका मिसयूज ना हो सके ठीक है such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India ठीक है इंडिया में फीमेल feticide बहुत हाई है ठीक है तो उससे क्या मतलब उस पर चेक आ सके तो इसलिए जो इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स होते हैं ठीक है उस पर चेक रखने के लिए गवर्नमेंट ने सारे रूल्स बनाए Why MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancies, either due to the casual and intercourse or failure of the contraceptive used during the coitus or rape. ठीक है MTP are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or the fetus or both. तो भी हमने डिस्कस किया था MTP are considered relatively safe during the first trimester में इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी क्या होता है सेफ होता है अप टू द 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ठीक है तो 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में
MTP सेफ होता है मतलब पहले ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 डॉक्टर का एडवाइस लेना पड़ता है। वन दिस टॉपिक टेंड इज ऑब्जर्व इज द मेजॉरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म इलीगली, ठीक है, बहुत सारे MTPs इलीगली होते हैं। And the dangerous trend is misuse of amniocentesis to determine sex of unborn child, वही फीमेल भी डिसाइड कर देंगे, ठीक है। frequently if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. तो फीमेल चाइल्ड को मार देंगे और वो करके सेक्स उनका डिटरमाइन करवा कर उनको मार देते हैं। Such practices should be avoided because of these are dangerous because such practice should be avoided because these are dangerous for both young mother and fetus, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस को रोकना पड़ेगा क्योंकि दोनों के लिए डेंजरस होते हैं, फीटस के लिए भी यंग मदर के लिए भी। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड coitus and risk factor, ठीक है, involving illegal abortion and while providing mental health more health facilities would reverse the mentioned unhealthy trend, ठीक है। सेक्सुअली STIs, ठीक है, sexually transmitted infections. Infections or diseases which are transmitted to sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection STI. तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो इन्फेक्शन या डिजीजेस होते हैं उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं, STI बोलते हैं। और वायरल डिजीज है VD बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTI बोलते हैं। गोनोरिया, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent HIV leading to AIDS are some of the common STIs, ठीक है, ये सारे common STIs हैं। Among these HIV infection, HIV सबसे ज़्यादा dangerous होता है, ठीक है। और some of these infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted। और देखो हेपेटाइटिस बी एंड HIV और कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से। विद इन्फेक्टेड पर्सन फ्यूजन ऑफ ब्लड से भी हो सकते हैं, फ्रॉम अ इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी, उनके प्लेसेंटा से, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स, HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज कंप्लीटली क्योरेबल, डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस बी को छोड़ के जितने भी सब हैं, अगर उनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो उनको ट्रीट कर लिया जाएगा, बट हेपेटाइटिस बी को नहीं कर सकते, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस माइनर एंड इचिंग, मतलब इनके अर्ली मोस्ट जो ट्रीटेबल है उनके माइनर सिम्टम्स क्या क्या होते थे, जैसे कि इचिंग बहुत ज़्यादा होती थी, फ्लूइड डिस्चार्ज होता था, स्लाइट पेन होता था, स्वेलिंग होता था, ठीक है, इन द जेनाइटल रीजन में, ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्टोमेटिक एंड हेंस they remain undetected for long. Absence of less significant symptoms in the early stage of infection. The social stigma to attach to STI deter infected person from going timely detection and proper treatment. तो पहले मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है ना कि इस सब डिजीज़ को लेकर, तो इसलिए लोग जाते भी नहीं डॉक्टर के पास, टाइमली डिटेक्ट भी नहीं किया जा पाता है इन सबको। This could lead to the complication later which could pelvic inflammatory disease से हो सकता है, PID, abortion, stillbirth हो सकता है, ectopic pregnancy and fertility and even cancer in the reproductive tract, इनमें खतरनाक डिजीजेज हो सकते हैं, ठीक है। STI is a major threat to the healthy society. STI जो है वो major threat है healthy society में। Therefore prevention of early detection हो चाहिए और क्योर होना चाहिए डिजीज are primary consideration under reproductive health care programs, ठीक है। इन प्रोग्राम्स के अंदर इनका अर्ली डिटेक्शन और यही सब तो करने के लिए वो बनाया गया प्रोग्राम्स। दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन एज ग्रुप, मतलब ये सारे जितने लोग होते हैं सब किसी को भी हो सकता है, बट ये एज ग्रुप है 15 से 24 ईयर, इन सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ये सारे इन्फेक्शन होने के। द एज ग्रुप विच यू बिलोंग टू, मतलब जिनमें हम बिलोंग करते हैं। देयर इज नो reason to panic because prevention is possible, ठीक है। One could be free from these infection by following the simple principle, ठीक है। Avoid sex with unknown partners or multiple partners, ठीक है।
always try to use condom during coitus. In case of doubt, one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment and diagnosed with an infection. बात करेंगे infertility, last topic. Discuss on the reproductive health incomplete without the mention of infertility. A large number of all couples all over the world, including India, are infertile. बहुत सारे couples हैं जो infertile है. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. ठीक है. The reasons for this could be many physical, congenital diseases, immunological और even physiological. ठीक है. कोई भी बहुत सारे reasons है, इसके कुछ भी हो सकता है. इंडिया में पता है कि फीमेल को ज़्यादा ब्लेम, मतलब ऑफन हमेशा ही ब्लेम किया जाता है फॉर द कपल बी चाइल्डलेस. ठीक है. कपल के चाइल्डलेस होने पे सबसे ज़्यादा फीमेल को ब्लेम किया जाता है. बट इसमें लिखा है कि मोर ऑफन दैट नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर. ठीक है. बट ज़्यादातर क्या होता है, प्रॉब्लम जो होती है वो मेल पार्टनर में लाई करती है. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक. ठीक है. मतलब इनफर्टिलिटी क्लिनिक से बहुत सारे बनाए गए हैं. कुड हेल्प फ्रॉम डायग्नोज करने में हेल्प कर सकते हैं. करेक्टिव ट्रीटमेंट से भी करेक्टिव उसका सही से ट्रीटमेंट कर सकते हैं. डिसऑर्डर एनेबल दोज कपल टू हैव चिल्ड्रन. ठीक है. हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, द कपल्स कुड बी असिस्टेड फ्रॉम चिल्ड्रन थ्रू स्पेशल टेक्निक. जहाँ पे ये सारी चीज़ें ठीक नहीं की जा रही उन्हें एक स्पेशल टेक्निक से उनको बच्चे हो सकते हैं, जैसे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको कहेंगे लोग आर्ट बोलते हैं, ART बोलते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF. ठीक है. विट्रो मतलब आउटसाइड बॉडी. ठीक है. इसमें क्या होता है, IVF फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज इन द बॉडी. तो बॉडी के आउटसाइड में सिमिलर कंडीशन क्रिएट करते हैं जैसे कि बॉडी के अंदर होता है. फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर. ठीक है. ET इज वन of the such methods. In these methods popularly known as testing. ठीक है. तो इन विट्रो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग देखो, एक इसमें ऐसे है कि इन विट्रो होता है ना, बॉडी के बाहर होगा. तो बॉडी के बाहर हम लोग गैमीट नहीं ट्रांसफर करेंगे ना, हम लोग बाहर ही बना लेंगे चीज़ें. तो यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे. ठीक है. ET एम्ब्रियो ट्रांसफर वन सच मेथड. इन दिस मेथड इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है. इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं. ओवर फ्रॉम द वाइफ. ठीक है. स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, मेल डोनर, एंड कलेक्टेड एंड इंट्रोड्यूस में टू फॉर्म उससे जाइगोट बनाया जाता है अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी. ठीक है. द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर could be transferred into the fallopian tube. देखो, जब कम ब्लास्टोमेयर जैसे 8 ब्लास्टोमेयर का होगा तो उनको कहाँ भेज दिया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया. जैसे एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. एम्पुला के बाद अगर जैसे कि 8 ब्लास्टोमेयर का ये है. ठीक है. तो इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, इसको फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाएगा ना. और उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. ठीक है. इसमें क्या हम लोग ट्रांसफर करें, जाइगोट कर रहे हैं ना, तो कहाँ इसको कहाँ ट्रांसफर करें, इंट्राफेलोपियन. तो इसको जिप बोलेंगे. ठीक है. एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोम, अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर है. ठीक. उनको ऑब्वियसली बात है, फिर हम लोग आगे के स्टेजेस में कहाँ जाता है वो एग फर्टिलाइजेशन के बाद, यूटरस में. तो हम इसको डायरेक्टली यूटरस में ही वो कर देंगे. IUT इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं. टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फॉर्म इन विवो फर्टिलाइजेशन. एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द फीमेल. ठीक है. अब देखो, हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर ली. अब हम इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, जिसमें कि क्या है कि विवो है मतलब कि बॉडी, विवो मतलब होता है बॉडी. ठीक है. बॉडी के अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाएंगे. तो मतलब अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो हम लोग गैमीट ट्रांसफर करेंगे ना, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो. जाइगोट थोड़ी है ट्रांसफर करेंगे. तो एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द फीमेल. विल आल्सो पॉसिबल ट्रांसफर असिस्ट द फीमेल हु कैन नॉट कंसीव. ट्रांसफर ऑफ ओवम, देखो, कलेक्टेड फ्रॉम, अगर फीमेल ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, कलेक्टेड बाय द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है. तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो गैमीट को कहाँ ट्रांसफर करें, फैलोपियन, जिसको क्या बोलेंगे, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. यहाँ तक फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन. ठीक है. जो कि ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट, बट अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पा रही है जहाँ की उसका
पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum, ठीक है। इसमें क्या होता है, ICSI में जो स्पर्म होता है वो इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली ओवम में क्या क्या है डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में स्पर्म को, ठीक है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन, इनफर्टिलिटी केसेस इधर ड्यू टू इनअवेलेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट। इनफर्टिलिटी केसेस क्यों होते हैं, क्योंकि मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पाता फीमेल पार्टनर के अंदर ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट। कभी स्पर्म काउंट्स बहुत लो होते हैं इन द स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इससे करेक्ट कर दिया जा सकता है। इन दिस टेक्निक इसमें करेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड से हेल्दी डोनर से आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना। उसमें क्या किया जाता है, हेल्दी डोनर से वो ले लिया जाता है स्पर्म, ठीक है। तो उसको वजाइना में प्लेस किया जाता है और इनटू द यूटरस या फिर यूटरस उसको क्या बोलेंगे, यूटरस में प्लेस कर रहे थे उसको इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन ऑफ फीमेल बोलेंगे, ठीक है। दो ऑप्शंस आर मेनी, ठीक है। दीज आर टेक्निक्स रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the company. तो ये facilities काफ़ी कम countries में available है। Obviously, their benefits is affordable to only a limited number of people, ठीक है। और obviously costly होंगे तो limited number of people के लिए affordable होंगे, ठीक है। Emotional, regional, social factor also deterrence in the adoption of these methods, ठीक है। is the ultimate aim of all these procedures to have children, ठीक है। तो और भी बहुत सारे वेज है, ठीक है। जैसे कि so many orphans हैं इंडिया में, ठीक है। डिसीज्ड चिल्ड्रन है who have possibly not survived till maturity, जो कि मेच्योरिटी की जिंदा नहीं रही है, just taken care of, अगर उसकी केयर नहीं की गई थी। तो our laws permit legal adoption and it is as it, तो हमारे मतलब हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं लीगली, ठीक है। ये भी एक मेथड है कि अडॉप्शन कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, ठीक है। ये सब बेस्ट मेथड है मतलब जो कपल पेरेंट बनना चाहते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।